वेरी गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हो बच्चों? हाँ, दोनों पार्ट आपको मिल गए। कल जो लेसन में ऑडियो की प्रॉब्लम हो गई थी, आई होप यू हैव गॉट बोथ द पार्ट्स। हाँ, यू हैव जॉइंड देम, लिसन टू देम प्रॉपरली। हाँ, और अब कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा आज का वीडियो भी जो पहले पोस्ट हुआ था उसमें पूरे वीडियो में ऑडियो नहीं था, सो आई एम सेंडिंग यू अगेन. So go through it. Okay, so up till now we have done till Mysore wars, how English captured Mysore. Hyder Ali, they fought war with Hyder Ali, then his son Tipu Sultan, and ultimately Mysore was annexed in the English Empire. यहाँ तक हमने लेसन किया है. Today we'll start with struggle with the Marathas. The first Maratha war that took place in 1775 to 82. It was fought between the Marathas and the English when Warren Hastings was the Governor General of India. So during the Maratha war, who was the Governor General of English? Warren Hastings. The English clashed with the Marathas for the first time in 1775. Marathas और English की पहली लड़ाई, हाँ, पहला क्लैश 1775 में हुआ. आफ्टर द डेथ ऑफ द फोर्थ पेशवा, जब पेशवा की डेथ हुई, हिज यंगर ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा. व्हेन द एल्डर ब्रदर डाइड, सो हिज यंगर ब्रदर नारायण राव बिकेम द पेशवा. बट हिज अंकल, नारायण राव के एक अंकल थे राघोबा, ही गॉट हिम किल्ड. उन्होंने नारायण राव को मरवा दिया. एंड सीज्ड द थ्रोन. सीज्ड मीन्स कैप्चर्ड द थ्रोन, थ्रोन पर कब्जा कर लिया. जबकि कौन था पेशवा, कौन थे? नारायण राव. ही वॉज किल्ड बाय राघोबा एंड कैप्चर्ड द थ्रोन. द मराठा चीफ्स अंडर द लीडरशिप ऑफ नाना फडणवीस, वेरी इंपॉर्टेंट मराठा लीडर नाना फडणवीस, उनके अंडर में सारे मराठा चीफ्स ने एक ग्रुप बनाया. रिमूव्ड Raghoba, deposed him means removed Raghoba from the throne and placed Madhav Rao II, who was the son of Narayan Rao, on the throne. So Narayan Rao was killed by Raghoba. Raghoba became the Peshwa, but Nana Fadnavis and all the other Maratha chiefs, they removed Raghoba from the throne and made Madhav Rao II the Peshwa. He was the son of Narayan Rao. The English supported Raghoba. और इसीलिए ये क्लैश हुआ क्योंकि मराठा चीफ्स ने जो किया, राघोबा को हटाया. बट इंग्लिश सपोर्टेड राघोबा एंड द फर्स्ट मराठा वॉर बिगेन इन द ईयर 1775. All the Maratha chiefs were united under the Peshwa. Very strong group Marathas. They defeated the British forces sent from Bombay. और उन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को भी हरा दिया. This was the dark hour for the British power in India. एक बुरा समय, when they faced defeat. Though English were very powerful, but up till now, इस समय तक, Marathas, because they were also very powerful, so they defeated English. तो थोड़ा एक time period था when British faced defeat. Warren Hastings, however, sent two armies from Bengal. तो when the British army was defeated by Marathas, Warren Hastings जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी की हेल्प के लिए 2 और आर्मीज भेजी फ्रॉम बंगाल. द इंग्लिश कैप्चर्ड अहमदाबाद इन 1780. दे ऑल्सो सीज्ड, कैप्चर्ड ग्वालियर फ्रॉम द मराठा चीफ महादजी सिंधिया. So when these two armies came from Bengal to help British army, they became very powerful. First they captured Ahmedabad and then they seized Gwalior. And who was ruling over Gwalior? Mahadji Scindia. The Scindia sued for peace. भाई peace treaty sign करी उन्होंने English के साथ, and consequently the war was concluded, ended in 1782 by the Treaty of Salbai. तो ये वॉर ख़त्म हो गया. फर्स्ट मराठा वॉर विद द ट्रीटी ऑफ सालभाई बिटवीन इंग्लिश एंड महादजी सिंधिया. एंड महादजी सिंधिया ने साइन करी ट्रीटी विथ इंग्लिश. द इंग्लिश एक्नॉलेज्ड माधव राव सेकेंड एज द पेशवा. इंग्लिश मान गए, ओके.
Madhav Rao II as Peshwa, and Raghoba was given a pension of 3 lakh rupees a year. और राघोबा को पेंशन दे दी कि आपको हम इतना पैसा देंगे, यू सिट क्वाइटली. And Madhav Rao II became the Peshwa. In this way, the English were able to save their prestige in India. नहीं, otherwise they were defeated by Marathas. लेकिन ये ट्रीटी ऑफ सालबाई करके उन्होंने अपनी प्रेस्टीज बचा ली. नाना फडणवीस, जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा था, मराठा चीफ. नाना फडणवीस was an able Maratha leader, very able, very brave. He maintained unity among the Maratha chiefs and kept the Maratha confederacy intact. जब तक नाना फडणवीस रहे, he was alive, till then Marathas were united. उन्होंने मराठास को, सारे मराठा चीफ्स को यूनाइट करके रखा. They broke out a civil war among the Maratha chiefs after his death in 1800. But Nana Fadnavis died in 1800 और उनकी डेथ के बाद मराठास में सिविल वॉर. ऑल द लीडर्स, मराठा लीडर्स, दे स्टार्टेड फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स. ईच चीफ वांटेड टू ब्रिंग द पेशवा अंडर हिज इन्फ्लुएंस. जितने भी मराठा चीफ्स थे, सिंधिया हमने पढ़ा, आगे पढ़ेंगे हम, होलकर है और भोंसले है, ये सब पेशवा को अपने साथ करना चाहते थे, उनकी नज़रों में अच्छे बनना चाहते थे. जसवंत राव होलकर है ना, अनदर मराठा चीफ, attacked and defeated the combined forces of the Peshwa and Sindhya and drove Peshwa Baji Rao II. Who's the Peshwa at this time? Baji Rao II out of Pune. So Jaswant Rao Holkar, very brave Maratha king, Maratha leader, एक चीफ थे ये, और इन्होंने combined forces, पेशवा और सिंधिया के साथ की आर्मी साथ लड़ रही थी और दूसरी तरफ होलकर थे. बट ही डिफीटेड दोज जॉइंट फोर्सेस और पेशवा बाजीराव को पूना से बाहर निकाल दिया. इन 1802 बाजीराव रश्ड इनटू द आर्म्स ऑफ द इंग्लिश. रश्ड इन द मीन्स टुक हेल्प. इंग्लिश के पास गए हेल्प लेने. एंड कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ बसीन. किसके बीच में हुई बच्चों? ट्रीटी ऑफ बसीन. इट वॉज साइंड बिटवीन द पेशवा एंड इंग्लिश. सो दे साइंड ट्रीटी ऑफ बसीन विद देम. ही एक्सेप्टेड द सब्सिडरी सिस्टम. पेशवा ने मान लिया, हाँ, लॉर्ड वेलेस्ली ने एक नया सिस्टम, हम आगे पढ़ेंगे, सब्सिडरी सिस्टम लागू किया था इंडिया पर. सो ही एक्सेप्टेड दैट ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली एंड एक्नॉलेज द सुजरैनिटी ऑफ द इंग्लिश. कमांड, व्हाट इज सुजरैनिटी? सुपीरियोरिटी और कमांड ऑफ द इंग्लिश. द हेड ऑफ द मराठास, कौन है हेड ऑफ द मराठास? पेशवा है ना, बाजीराव सेकेंड. दस केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंग्लिश. तो अब स्पेशली मराठास किसके इन्फ्लुएंस में आ गए? इंग्लिश. देन केम द सेकेंड मराठा वॉर इन 1803 to 05 ड्यूरिंग द गवर्नर जनरलशिप ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली. दिस टाइम हु इज द गवर्नर? लॉर्ड वेलेस्ली इज द गवर्नर. So under his governorship, when he is the governor of India, from 1798 to 1805 were fought the second and third Maratha wars. Two Maratha wars were fought under Lord Wellesley. The Maratha chief, कौन? Specially Sindhya and Bhosle looked upon the Treaty of Bassein as a great disgrace to the nation. अभी हमने पढ़ी थी ना ट्रीटी ऑफ बसीन, पेशवा और इंग्लिश के बीच में साइन हुई थी, लेकिन मराठा चीफ्स को ये अच्छी नहीं लगी, तो वो इसके खिलाफ थे. उन्हें लगा ये मराठास के लिए बहुत ह्यूमिलेटिंग बात है. दे रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी सिस्टम. उन्होंने इसे भी मानने से मना कर दिया. एज वॉज फोर्स्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ले एंड डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट द इंग्लिश इन 1803. तो सिंधिया और भोसले, जो कि दोनों मराठा चीफ हैं, दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट English, and that is second Maratha war. Both of them were defeated and were left with no other alternative but to enter into subsidiary alliance with the English. Though they fought unitedly, भोसले और सिंधिया की आर्मीज मिलकर लड़ी थी इंग्लिश से, but English were very powerful by this time, so they defeated their joint armies. और भोसले एंड सिंधिया हैड टू एक्सेप्ट सब्सिडरी अलायंस. दे एक्सेप्टेड देयर ओवरलॉर्डशिप, मतलब यू आर अ मास्टर, दैट इज ओवरलॉर्डशिप,
एंड गेव द टेरिटरीज, सीधे मतलब ये इंग्लिश को दे दी उन्होंने टेरिटरीज ऑफ अहमदनगर, भरूच, ये टेरिटरीज दी इंग्लिश को. द टेरिटरी बिटवीन द गंगा एंड द यमुना, कटक एंड बालासोर. तो ऑल दीज टेरिटरी, अहमदनगर, भरूच, कटक, बालासोर and between Ganga and Yamuna, they were given to English. The second Maratha war gave a blow to the power and prestige of the Marathas. See, in first Maratha war, Marathas were very powerful, but now during second Maratha war, Marathas have become weak and English have become powerful. So they defeated Marathas. Then comes the third Maratha war in 1805. Still Lord Wellesley, right? लॉर्ड वेलेस्ले आस्क्ड होलकर, सिंधिया और भोसले तो आ गए अब उनके अंडर में, पेशवा भी आ गए, अब कौन रह गए? होलकर. सो दे आस्क्ड होलकर टू एक्सेप्ट द सब्सिडरी सिस्टम. होलकर वॉज वेरी पावरफुल, सो ही रिफ्यूज्ड. ही ऑन हिज रिफ्यूजल टू डू सो, ही डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हिम इन 1805, विच इज नोन एज द थर्ड मराठा वॉर. The power of Holkar could not be completely broken. ठीक, English were very powerful, but Holkar was no less. तो मराठा इंग्लिश चाहकर भी होलकर को ख़त्म नहीं कर पाए. As Wellesley was recalled from India, बीच में ही, अभी ये जब वॉर चल रहा था, in between only Wellesley was called back to England from India and the company made peace with him in 1806. होलकर और इंग्लिश के बीच में ट्रीटी हो गई. द माइटी पावर ऑफ द मराठास केम टू एन एंड आफ्टर द फोर्थ मराठा वॉर. अभी भी बाकी है, 3 वॉर्स हो चुके हैं, स्टिल 1 more left. When Marks Hastings was the Governor General and after Wellesley came Marks Hastings of India. By 1818 the English had become a paramount. Paramount means supreme power. सब मराठास को हरा दिया था. So now we'll study about the fourth Maratha War, 1817 to 1818. During the Governor Generalship of Lord Hastings, है ना, 2 wars, ये हमने अभी लॉर्ड वेलेस्ली का पढ़ा, उसके पहले. Now comes the Lord Hastings. A war between the two sides began in 1817. English and Peshwa. When the Peshwa Bajirao II attacked the British residency. पहले पेशवा ने ट्रीटी कर ली थी, कौन सी है? ट्रीटी ऑफ बसीन विथ इंग्लिश. लेकिन अब फिर उन्होंने अटैक किया इंग्लिश पे एंड रिड्यूस्ड इट टू एशेस. ब्रिटिश रेजिडेंसी मीन्स बिल्डिंग, हाँ, जहाँ पर ये रहते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स वगैरह, और उसे बिल्कुल जला दिया. इन फैक्ट दिस वॉर वॉज द आउटकम ऑफ द फीलिंग ऑफ ह्यूमिलेशन which the Marathas had suffered during the days of Lord Wellesley. तो देखा जाए तो फोर्थ मराठा वॉर एक लास्ट कोशिश थी. इट वॉज द लास्ट एफर्ट ऑफ द मराठास टू गेट बैक देयर पावर. ये उनकी लास्ट कोशिश थी कि किसी तरह से हम इंग्लिश से जो हारे हैं, और इंग्लिश की इतनी सारी ट्रीटी साइन करनी पड़ी, इतनी सारी टेरिटरीज उन्हें देनी पड़ी, तो वो किसी तरह से हम वापस ले लें, वो बदला लेना चाहते थे. इसलिए उन्होंने ये वॉर स्टार्ट किया. द डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द मराठा कॉन्फेडरेसी, कौन कौन है? होलकर, सिंधिया, पेशवा एंड भोसले, इन सब ने मिलकर लड़ा, बट दे वर डिफीटेड. द मराठा पावर वॉज दस कंप्लीटली ब्रोकन. एज अ रिजल्ट द ऑफिस ऑफ द पेशवा वॉज अबॉलिश्ड. सो आफ्टर फोर्थ मराठा वॉर ये पोजीशन ही ख़त्म कर दी गई कि अब कोई पेशवा नहीं रहेगा, एंड ऑल हिज किंगडम वॉज एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर. और जितनी भी टेरिटरीज थी उनकी, उस पर सब पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा हो गया. अप्पा साहेब भोसले वॉज डिपोज्ड. डिपोज्ड का मतलब रिमूव. अप्पा साहेब भोसले एंड ऑल द टेरिटरीज ऑफ द भोसले स्टेट, और भोसले के अंडर में जितनी भी टेरिटरीज थी north of the Narmada were annexed to British Empire. By the Treaty of Mandsaur, half of होलकर स्टेट, देखो पहले पेशवा को हटाया, फिर अप्पा साहेब भोसले को हटाया और उनकी टेरिटरीज मिला ली इंग्लिश एम्पायर में. देन बाय द ट्रीटी ऑफ मंदसौर, हाफ ऑफ होलकर स्टेट वॉज ऑल्सो एनेक्स्ड.
धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं ना सारे मराठा चीफ्स को. ही रिनाउंस्ड ऑल हिज क्लेम ओवर द राजपूत स्टेट्स, और राजपूत स्टेट्स पर भी जहाँ जहाँ होलकर का कब्जा था वो सब ख़त्म कर दिया गया. Though Scindia had not taken part in this war, yet he was not spared. उन्हें भी नहीं बख्शा गया. तो फोर्थ मराठा वॉर के बाद पेशवा वॉज रिमूव, होलकर की टेरिटरीज ले ली. सिंधिया ने भले ही पार्ट नहीं लिया था लेकिन फिर भी उन्हें भी नहीं छोड़ा. अजमेर वॉज स्नैच्ड अवे फ्रॉम हिम. सो दिस वे all the Maratha chiefs, they were defeated one by one. In this way, such vast territories were taken away from the Marathas by Lord Hastings that they were almost reduced to nothing. बहुत बुरी हालत कर दी मराठास की. Once a supreme power, Marathas were very powerful in India. Even Rajputs तक का काफ़ी एरिया उनके अंडर में चला गया था. मुग़ल एम्पायर का काफ़ी हिस्से पर कब्जा कर लिया था. But ultimately they were defeated by the English. It has been rightly said, what might have been carried out in 1805, जो काम 1805 में ही हो जाता, हाँ, अंडर वेलेस्ले, कौन करता? लॉर्ड वेलेस्ले, was at last accomplished by Marks of Hastings in 1818. अगर लॉर्ड वेलेस्ले को वापस इंग्लैंड नहीं बुला लिया गया होता तो ही वुड हैव डिफीटेड मराठाज इन 1805 ओनली. बट अल्टीमेटली दे वर डिफीटेड इन 1818 और सारी मराठा टेरिटरीज दे वर एनेक्स्ड इन इंग्लिश एम्पायर. नाउ नेक्स्ट एनेक्सेशन इज एनेक्सेशन ऑफ सिंध in 1843. By the end of the 18th century, the Baluchi chief, Baluchi is a tribe, ये रूल कर रहे थे ओवर ऑफ द ताजपुर ट्राइब established their rule over Sindh. So who was ruling over Sindh? The Baluchi chiefs of the Tejpur tribe, and founded the 3 independent states of Khairpur, Mirpur and Hyderabad. Now this Hyderabad is different children. वो जो हमने निज़ाम ऑफ हैदराबाद पढ़ा था ना, वो हैदराबाद अलग है और ये हैदराबाद अलग है. दिस इज़ नाउ इन पाकिस्तान. सो ये 3 स्टेट्स उन्होंने एस्टेब्लिश किए बलूची चीफ्स ने. दे बिगेन टू बी कॉल्ड एज द आमिर्स ऑफ सिंध. क्या कहलाते थे ये? आमिर्स ऑफ सिंध. बोथ महाराजा रंजीत सिंह, कहाँ के हैं महाराजा रंजीत सिंह? पंजाब. एंड द इंग्लिश वॉन्टेड टू ग्रैब सिंध इन देयर रिस्पेक्टिव एम्पायर्स. दोनों की नज़र थी सिंध पर. When Ranjit Singh's ambition was to obtain free passage to the sea. रंजीत सिंह सिंध को क्यों लेना चाहते थे? Because he wanted a way. एक रास्ता चाहिए था उन्हें ओशन या सी तक जाने के लिए, and that was through Sindh. The English wanted to extend their influence to Afghanistan by Sindh. तो दोनों को अपना रास्ता बनाना था. रंजीत सिंह wanted to go to the sea and English wanted to go to Afghanistan. तो सिंध बीच में आ रहा था. So both wanted to capture Sindh. In 1809, during the Governor Generalship of Lord Minto. Now, कौन है लॉर्ड यहाँ पर? लॉर्ड मिंटो. The English concluded, I think this is not, 1809, okay. During the Governor Generalship of Lord Minto, the English concluded their first treaty with the Amirs of Sindh. Lord Minto, English governor, और आमिर्स ऑफ सिंध, दोनों के बीच में एक ट्रीटी हुई. दे प्रॉमिस्ड नॉट टू अलाउ द फ्रेंच पास थ्रू देयर कंट्री. पहली बात तो दोनों फ्रेंच पार को एंट्री नहीं देंगे, फ्रेंच से दूर रहेंगे. इन 1833 लॉर्ड विलियम बेंटिक कंक्लूडेड अ ट्रेड ट्रीटी. उन्होंने इन बालूची चीफ्स या आमिर्स ऑफ सिंध के साथ एक ट्रेड ट्रीटी साइन करी एंड प्रॉमिस दैट द इंग्लिश वुड नेवर कैरी द मिलिट्री स्टोर्स और आर्म्ड वेसल्स थ्रू सिंध. और इस ट्रेड ट्रीटी के हिसाब से सिंध में सिर्फ इंग्लिश के ट्रेडर्स जाएंगे. कोई भी आर्म्स, कोई भी वेपन्स और वी शुड से रेजिमेंट, आर्मी विल नॉट एंटर सिंध. वो अलग रहेंगे. सिंध का रास्ता उन्हें चाहिए था ओनली टू डू ट्रेड. इन 1839 व्हेन ऑकलैंड वॉज द गवर्नर जनरल, फिर चेंज हुआ. ये ट्रीटी तो किसने साइन करी? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने. लेकिन फिर क्या चेंज आया? हु बिकेम द गवर्नर ऑफ इंडिया?
ऑकलैंड. हु बिकेम द गवर्नर? ऑकलैंड. सो अब थोड़ा सा चेंज आएगा सिस्टम में. When Auckland was the Governor General, the first Afghan war broke out. हाँ, ये स्टार्ट हुआ in 1839. At that time, the English violated this treaty. क्या ट्रीटी थी? That no arms, no armed vessel will go through Sindh. उन्होंने ये ट्रीटी तोड़ दी and took their armed forces across Sindh to Afghanistan. But the Amirs kept quiet. आमिर्स ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग अफगानिस्तान जा रहे हो, बल्कि ट्रीटी तोड़ी थी. But they kept quiet at that time, notwithstanding their own conduct. लेकिन उन्हें सिंध चाहिए था. ब्रिटिशर्स वांटेड सिंध. सो अपने ही कंडक्ट को उन्हें लगा कि नहीं, आमिर्स भड़क जाएंगे, लड़ेंगे, ट्रीटी करेंगे, कुछ तो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ. लॉर्ड एलिनबरो अक्यूज द आमिर्स ऑफ प्लॉटिंग अगेंस्ट द इंग्लिश. जबकि आमिर्स ने कुछ नहीं किया, लेकिन जो इंग्लिश लॉर्ड हैं उन्होंने इल्ज़ाम आरोप लगाया आमिर्स पर दैट दे हैव गॉन अगेंस्ट द ट्रीटी. इन फैक्ट एक्चुअली में क्या था, द इंग्लिश वांटेड टू एनेक्स सिंध. वो बाय हुक और क्रुक कुछ भी रास्ता अपनाकर सिंध पर कब्जा करना चाहते थे. एज देयर ओनली राइवल रंजीत सिंह वॉज नाउ डेड. दूसरे रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी थी, तो उधर खतरा तो ख़त्म हो गया. सो नाउ दे वांटेड टू टेक सिंध. Sir Charles Napier was sent to inquire into the whole situation. ये पता करने आए सिंध में कि क्या चल रहा है, देखने आए. He forced the Amirs by his offensive conduct. Very badly he behaved with the Amirs. है ना, उनके साथ बहुत गलत बिहेवियर किया. To raise a standard of revolt. और यहाँ पर Amirs were very angry, so they revolted. Acting on an excuse of curbing the revolt. भाई पहले तो खुद ने ही भड़काया आमिर्स को. एंड व्हेन दे रिवोल्टेड, फिर इंग्लिश आर्मी ने उन पर क्या कहकर अटैक किया कि हम इस रिवोल्ट को ख़त्म कर रहे हैं, जो विद्रोह हुआ इसे ख़त्म कर रहे हैं. नेपियर राउटेड द आमिर्स ऑफ सिंध इन द बैटल ऑफ मियानी एंड डोबो. 2 वॉर्स हुए एंड द आमिर्स ऑफ सिंध वर डिफीटेड. ही एनेक्स्ड सिंध टू द ब्रिटिश एम्पायर इन 1843. बस मौका मिल गया. पहले खुद ने ही ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया कि आमिर्स उनके खिलाफ हो जाएं, फिर जब वो लड़ाई पर आए तो उन्हें हरा दिया और सिंध पर कब्जा कर लिया. एंड द आमिर्स वर फोर्स्ड आउट ऑफ सिंध. इन दिस वे द एनेक्सेशन ऑफ सिंध विदाउट एनी वैलिड रीज़न. कोई रीज़न नहीं था. आमिर्स वर वेरी सिंपल पीपल. हाँ, दे डिडंट इवन वांटेड टू फॉट विथ इंग्लिश, लेकिन इंग्लिश को तो टेरिटरी चाहिए थी, तो किसी तरह से उन्होंने उस टेरिटरी को कॉन्कर किया. वॉज फुली अनजस्ट. That is why a historian has remarked that the British in India had done many unjust things. तो बोला है एक हिस्टोरियन ने कि इंग्लिश ने बहुत गलत तरीके अपनाए इंडिया पर अपना रूल करने के लिए. of which none could match the annexation of Sindh. मतलब आगे जाकर भी उन्होंने बहुत गलत तरीके अपनाए, हम पढ़ेंगे आगे स्टोरीज़ में. लेकिन जितनी बड़ा मिस्टेक या गलत काम उन्होंने सिंध को मिलाकर किया, उसकी बड़ी गलती और कोई नहीं हो सकती थी. So this is how Sindh was annexed in British Empire. So today we have read the 4 Maratha wars, how Marathas were defeated by the English, and then how they captured Sindh. And next we'll start with annexation of Punjab. Till then, keep reading.